You see, whole my life, I have whatever I wanted to say, I always said it through the camera. I don't mind teaching a class, but this is the first time I'm speaking to a certain kind of a forum, which I am not very used to it. And I will speak in all the languages because I don't have a perfect language, neither English nor Hindi nor Punjabi. So I'll keep on shifting from one to another. So thanks once again, thanks for coming. As I said कि मेरे वास्ते बहुत मुश्किल सी कि मैनू सब्जेक्ट दिता गया है जी मैमोरीज ऑफ आर्ट सिनेमा कला सिनेमा दियां यादां Is it cinematic memories we are looking for? Or is it a memories of relationship? Is it a professional memories which I should speak on? Or is it a memories of struggle or memories of achievement? Sad memories, happy memories. It's very difficult for me to pinpoint something. Then I just thought it's very difficult for me to speak on so many things. So let me just take you to my journey from my very small village to meeting one of the finest minds in Indian cinema. And that is the only I have achievement, that I met so many intelligent people in this field. First I thought, who's interested in my story? I am not Amitabh Bachchan, and I don't have a colorful story at the same time. But still, as आपने इतने मान से मेरे को बुलाया है, तो मेरे को बोलना तो पड़ेगा ही. So again, when I said, okay, my story, it's a problem with a cameraman generally, that whenever he has to switch on his first light, he's struggling. Which light I should switch on? Because if I switch on the wrong light, I will struggle whole of the scene. Same is here. From where I should start? So I am very thankful to Harjeet Singh ji because he came to my house about 10 days back and he asked me one question. बोला आपने तुसी कित्थों ताड़ा शौक पैदा होया बनाने दा? So I said, what story I have told him, let me tell you also. My father was a police officer. And my childhood I lived in this small village where now I am back living. So my father was posted in Dharamshala. So I was living with him over there in Dharamshala and did my schooling over there. और स्कूल्स में छुट्टियां हुआ करती थी तो मेरे फादर को ये बहुत बड़ा डर लगता था कि ये बच्चा तो अभी वारागर्दी करेगा. And we were living in a rented house and the owner had a shop of photography in Dharamshala. It still exists, Sharma Photography. So he told my landlord कि इसको यार दुकान पे ले जाया करो सुबह. And he gave me two choices. Either you sit on this shop or go back to the village. And I was very scared of traveling back. At that time, to board a bus from Dharamshala to Hoshiarpur used to take 8 to 10 hours. And I used to vomit a lot. And I had that phobia that I don't want to go back. Let me sit in this shop. And this was a photographic shop. And the entire thing, उस एरिया उस वक्त 1960s ਦੇ ਵਿੱਚ अर्ली 60s ਦੇ ਵਿੱਚ everything was on दलाई लामा. तो उन्होंने फोटोग्राफ खींच के रखे हुए थे. लामाज और अपने तिब्बतियंस यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू बाय इट. तो ही हैज़ गिवन मी ऑल द फोटोग्राफ्स. ही सेड कि ये इतने का है, इतने का जो आएगा उसको दे देना. अगर कोई कम ज़्यादा करता तो ही जनरली यूज्ड टू वर्क इन द डार्क रूम. डार्क रूम का दरवाज़ा खटखटाना,
तो वो मैं बाहर आके उससे बात कर लूँगा. I said, okay. And all my friends who were with me in the school, they all used to, and it's a very small street. They used to go and they used to sit with me and they want to play cricket, which I also wanted to play, but my father had fixed me over there. I had no choice. So one day this owner of the shop, Sharma ji, said, let me show you the dark room. So I went inside with him to the dark room. And for the first time in my life, I saw he printed something on a white paper, bromide paper, and put it into the chemical, and suddenly a photograph appeared. To me, it was a magic. I was very fascinated. But anyway, I was a child, this is the back of you, tomorrow a new thing happens, आप चल दिए अपनी ज़िंदगी में और वो आप भूल गए. But somewhere it got stuck in your, somewhere in your system. And I studied from 5th standard to the 10th or 11th standard over there in Dharamshala. When I was in the final years in school over there, Mr. V. Shantaram came to Dharamshala to shoot a film called Boond Jo Ban Gayi Moti. So as every child is interested, I was also interested. We all went to see the shooting. And he was shooting in, there was a church next to McLeodganj. It's a very beautiful old church. It's broken. I mean, I'm talking of 1960s. So we all went up to see the shooting. And I saw somebody with some kind of thing looking at a sun, and Dharamshala is a place that sun aunda janda, so they were finding it very problematic. And there was one person who continuously usko dekhta rehta tha. And when he used to say, ready, everybody will get, makeup man will come, Mumtaz and Lalita Pawar, I still remember, were the actors at that time in that scene. So they will run and they will puff them up, and they will be ready. So I got very impressed with this man. I asked somebody, ye kaun hai? Bola, cameraman hai. मैंने कहा यार सारे फिल्म का काम तो कैमरामैन करता है, ये बाकी लोग तो कुछ नहीं करते हैं. अगर, and that really again got stuck in my mind somewhere. And then I passed from there, came back to Hoshiarpur, started studying in college. But those things had certain kind of effect onto me. तो यहाँ आके हमारे गांव में एक रिटायर नहीं, वो नौकरी छोड़ के आ गए थे. सफदरजंग हॉस्पिटल में वो रेडियोग्राफर थे, मतलब कि एक्सरे करते थे. And he has learned some photography from Hoshiarpur with some from one shop. So I requested him कि मेरे को यार ये थोड़ा सा फोटोग्राफी सीखना है. मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं सारा दिन नहीं आ सकता, लेकिन कॉलेज के बाद एक आधा घंटा मैं उनके पास बैठ सकता हूँ. एंड बाय दिस टाइम यू आर इन कॉलेज, आपका फिल्मों की तरफ भी ध्यान सा हो गया था. अच्छा है. उन्होंने कहा कोई बात नहीं. एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू दैट शॉप. And in this early 70s time, Film Institute, lot of graduates have come out of the Film Institute, and I read one article in some film magazine about Film and Television Institute of India. And I was very impressed in a sense. I said, so many people have graduated from this place. One should go and learn cinema from there. So I started little bit more deeper into, so that I should go to Film Institute, started finding out what kind of exam is there, all those things. That was not a time when there was a net or something like that. But you have to ask people. You are a little bit interested in cinema. And one day in one of the newspapers, I saw the advertisement that there is an admission notice for the Film Institute. I was very happy. And I applied there. Nice place. And for that, I have to go to Delhi to give an exam. At that time, there was only 4 big city centers where you have to give the exam. So I started preparing. And by that time, my father has retired.
And my relationship with my father was not very cordial. Cordial, not bad also, but not. That was a time like that where father and son rarely used to talk properly. What he wanted me to become, I was not becoming. The kind of father I was wanting, he was not there. So that was some kind of a problem with both of us. So he saw me कि ये बड़े किताबें लेके पढ़ रहा है. तो he asked my mother कि एक एग्ज़ाम में फेल होने वाला, इसे कंपार्टमेंट आने वाली है जो पढ़ रहा है क्या? So my mother told him, no, he is going to go to Delhi to give an exam. Some exam he is going to give. My father thought, यार मेरे बच्चे को आज तक मैंने ऐसा तो देखा नहीं था. So one day he walked into my room. He saw a lot of books lying on the table, उल्टी सीधी की हुई हैं. He sat in front of me. इसे मैं सुनिया तू किते दिल्ली एग्जाम देने चला. मैं कहा हाँ जी. किस चीज़ का एग्जाम देने चले? मैं कहा जी पूना दे विच एक फिल्म स्कूल है, मैं उत्थे पढ़न जाना. My father just sank in the chair. He could never imagine that my son will talk like that. And he just lost his temper. He said, सिनेमा भी कोई पढ़ने वाली चीज़ होती है? 5 रुपए का टिकट लो, जाओ सिनेमा देख के घर आ जाओ वापस. ये क्या है? इसको कौन पढ़ता है? मैंने कहा नहीं जी. और एंड ही सेड, हम जिम्मेदार ख़ानदान से, चलो मैं नौकरी करके आया हूँ, जिम्मेदार लोग हैं, हमको क्या मालूम सिनेमा क्या होता है, फिल्म क्या होती है, और तुम पढ़ने जाओगे उस चीज़ को. But he आग बोला होके he walked out of the room. Then my mother put her foot down. She said, वो पढ़ने ही जा रहा ना, आप उसको मना नहीं कर सकते. कोई और चीज़ करने कहता, लेकिन पढ़ना क्या जा रहा है ये तो मेरे को बताओ. बोले नहीं, तो फिल्म के बारे में कुछ पढ़ना जा रहा है, फोटोग्राफी के बारे में कुछ पढ़ना नहीं. एनीवे ये लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ. फाइनली माय फादर एग्रीड एंड आई वेंट टू फिल्म इंस्टीट्यूट. 73. I'm coming to that time. 73 was a time when the Naxalbad was on top. तो हम भी अपने बाप से लड़के गए हुए थे फिल्म स्कूल. हम भी बड़ी चौड़ी छाती लेके फिल्म इंस्टीट्यूट में घुसे. बोला हम तो रिवलियन हैं, नक्सलवादी हैं. लेकिन वहाँ जाके मेरे को पता चला कि 90% लोग नक्सलवादी थे, क्योंकि सारे के सारे माँ बाप से लड़के आए हुए थे. किसी के एक्सेप्ट फ्यू पीपल, आई कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स, 5, 6, 7 लोगों के अलावा बाकी सारे के सारे माँ बाप ने बोला कहाँ जा रहे हो, पर आ गए थे वहाँ. तो एक तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी कम्युनिटी थोड़ी वाइड हो गई है. दूसरा मुझे ये लगा कि मैं अकेला रेवोल्यूशनरी था और मेरे साथ तो 500 रेवोल्यूशनरी आ गए हैं. वो मुझे नहीं अच्छा लगा. एनीवे फिल्म इंस्टीट्यूट में एंट्री ले ली. You met all kinds of people. You see, you have go to this kind of place in 1973 with a certain kind of a mind, you know. But when you go there and you meet everybody, आपको लगता है कि ये दुनिया ही कुछ दूसरी है. एक तो आप तो माँ बाप से भाग के सिनेमा देखा करते थे, वहाँ सुबह से लेकर रात तक फिल्में ही चलती हैं. तो शौक लगता ना इंसान को. आप यहाँ छुप के फिल्में देखते हैं, वो आपको सुबह उठते हैं, रात को सोते वक्त तक आप फिल्में देखे जा रहे हैं. दूसरा, अपने साथियों से मिलते हैं. हर इंसान की लैंग्वेज है, उसका खाने का तरीका अलग है, उसका सोचने का तरीका आपकी तरह नहीं है. पहले कुछ टाइम तो आपने को बहुत दिक्कत हुई. मैंने कहा ये तो नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा इसमें. हम पराठा खाने वाले लोग हैं, वहाँ इडली पड़ी हुई है, वो तो खानी पड़ेगी, क्या करोगे, जो है वो खाना पड़ेगा. हमने कभी ये चीज़ें नहीं देखी थी. 73 में ऐसा मेरे को लगता है पंजाब में कोई उड़ुपी रेस्टोरेंट नहीं था. फॉरगेट एनीथिंग एल्स. सो एनीवे वी आगे बढ़ते गए, वहाँ बढ़ते गए. तो थोड़े दिनों के बाद हमने एक फिल्म देखी, बाइसिकल थीव्स. और मैं आपको बता सकता हूँ कि फिल्म के बाद, हालांकि आई वॉज ओनली इन द फर्स्ट ईयर, इट्स नॉट कि आई कुड अंडरस्टैंड द फिल्म लाइक दैट, बट उसका एक मैजिक ऐसा मेरे ऊपर पड़ा कि मैंने कहा कि यार ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो बाइसिकल थीव्स जैसा करना चाहिए. और क्या क्या वो एक
सीक्वेंस के अंदर फिल्म है। अगर मैं आज भी अगर बाइसिकल थीफ को चला के देखूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ उसके अंदर से नया मिलेगा, ये मैं गारंटी का। मेरे को 500 दफा देखने के बाद, दैट इज द मैजिक ऑफ सिनेमा, एंड दैट इज विक्टोरियो डी सिका क्रिएटेड इन 1951, 55, 51, 52, 50, समथिंग लाइक दैट। या चलो, सफ़र अच्छा, मैंने कहा बहुत अच्छा है ये तो। थोड़े दिन और बीत गया और हमारे सीनियर हमको हमेशा कहा करते थे, बर्गमैन की फिल्म जिस दिन दिखाएंगे ज़रूर देखना, उसमें कैमरा वर्क देखना। अब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट 2 महीने में तो कैमरा वर्क आप नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी एक इंथुजियाज़म होता है देखने का। तो एक दिन साइलेंस दिखाई गई बर्गमैन की। मैं, हालांकि बर्गमैन की दूसरी फिल्में उन्होंने वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, क्लोजली अपना थ्रू द ग्लास डार्कली, और हमने देखी थी, लेकिन उन्होंने वाला साइलेंस ज़रूर देखा। साइलेंस देखने चले गए। जब साइलेंस देख के बाहर निकला तो मेरे को उसका ABC भी समझ नहीं आया। मैं बहुत डिसहार्टन हुआ एंड आई केम आउट। हमारे मेन थिएटर के बाहर एक जगह है, उसको विजडम ट्री कहते हैं, छोटा सा आम का पेड़ है, छोटी सी जगह है, और सारे मेरे कुलीग खड़े हुए हैं। उन्होंने फिल्म को लेफ्ट, राइट एंड सेंटर डाइसेक्ट कर दिया, एंड द काइंड ऑफ लैंग्वेज, द वे दे आर्टिकुलेटेड द एंटायर थिंग, आई वाज जस्ट लुकिंग एट समबडीज फेस कि भैया तुमको तो ABC इसकी समझ नहीं आई है, और इन्होंने तो अंदर से फिल्म को जान लिया है। कल तुम इनके साथ ही बॉम्बे जाओगे ना, कितना पीछे रहोगे तुम। आई गॉट वेरी, जैसे मेरे को बाइसिकल थीफ ने उठाया था, उसने नीचे फेंक दिया। और मेरे फादर ने उसको जाती वक्त एक पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर्स मेरे को दिए थे कि कहता बेटा एक बार महीने में लिख दिया करना, आई एम ओके, और अगर कभी पैसे मांगने हो तो इनलैंड लेटर में लिख दिया करना। तो दोनों चीज़ें उन्होंने दी हुई थी। तो मैंने रात को इनलैंड लेटर निकाला, मैंने कहा डैड यू वर राइट, दिस इज़ नॉट आवर फील्ड। और वो सर ज़माना ऐसा था कि पूना से लेटर डाला हुआ 18 से 20 दिन में आके गोविंदपुर खुनखुन में आके गिरेगा। उसके बाद मेरे फादर लिखेंगे तो मेरे को मिलेगा तो 1 महीना निकल जाएगा, और उसके बाद जब मैं उसका जवाब दूंगा तो 60 दिन तो मिनिमम निकल जाएंगे। तो मेरे फादर ने तो इमीडिएटली शाम को लेटर आया, ही गॉट डिस्टर्ब्ड, उसने मम्मी को बोला कि ये तो बहुत तिलमना गया वहाँ जाके। तो उन्होंने कहा नहीं आप लिखो कि सब ठीक हो जाएगा। तो एनीवे माय फादर रोट बैक, ही सेड इफ़ यू आर ओनली स्केयर्ड ना कि ये लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे, तो तुम इनसे ज़्यादा मेहनत करना चालू कर दो। और ये चीज़ मेरे को 60 दिन के बाद मिलती है, और मेरे एक छोटे से लेटर ने उनको वहाँ परेशान कर दिया। वो 60 दिन परेशान रहेंगे जब तक मैं फाइनली लिख के ये नहीं उनको मिलेगा कि अभी मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन मैं तो फिल्म इंस्टीट्यूट में था। दूसरे दिन मैंने वाजदा की फिल्म देखी, लैंडस्केप आफ्टर द बैटल, वो मेरी वो डिप्रेशन चले गया। मैं तो नॉर्मल हो गया, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को 60 दिन के लिए परेशान किया एक छोटी सी चीज़ के लिए। और वो ज़माना था, उस ज़माने के लोग तो मेरे को लगता है काफ़ी बैठे हुए हैं, लेकिन आज के ज़माने का बच्चा तो मेरे ऊपर हंसेगा कि ये क्या बात हुई भैया, 60 दिन कोई बात होती है, फ़ोन उठाओ और बात करो। उनको क्या बताया कि एक तो फ़ोन हुआ नहीं करते थे हमारे घर में, क्या हमारे गाँव में किसी के पास फ़ोन नहीं था। अगर हमने किसी रिश्तेदार को भी करना था, रात को जाके आप पुलिस पोस्ट ऑफिस में बैठोगे, वहाँ वो कॉल बुक करेंगे और हमेशा बोलेंगे साहब लाइन बिजी है, और आप सारी रात बैठे रहेंगे और लाइन बिजी रहेगी। वो ज़माने से हम गुजरे थे। बट एनीवे, उस ज़माने का अपना एक चार्म था जो आज के ज़माने में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। वो ये मेरा विचार है। आई एम श्योर द यंगर जनरेशन विल टॉक से समथिंग एल्स। सो सर, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट में लाइफ चलने लगी, गए, बड़े बड़े मास्टर्स का सिनेमा देखा, और 73 से 76 तक जो पीरियड मैंने इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, वो टाइम एक ऐसा था, ईस्ट यूरोपियन सिनेमा जो था, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, दे वर मेकिंग, दे ऑल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स एंड दे वर मेकिंग अनबिलीवेबल सिनेमा। और उसका हर प्रिंट हर रोज़
हमारे नेशनल फिल्म आर्काइव में आया करता था। आर्काइव उन दिनों नया नया स्टार्ट हुआ था, तो आर्काइव में आया करता था और हर रोज़ शाम को हम वो वहाँ की आई हुई फिल्म देखा करते थे। एंड दैट गिव्स, एवरी फिल्म गिव्स यू अ चैलेंज कि कल तुम जब इस जगह से बाहर निकलोगे तो इन जैसा काम करना है। आपको कोखते थे वो लोग, ना वहाँ कैमरामैन होता था ना डायरेक्टर होता था, लेकिन उसकी इमेज क्वालिटी आपको इतना तंग करती थी कि आपको कुछ ना कुछ करना है, आप मंडेन चीज़ नहीं कर सकते। जो उस वक़्त तो बॉलीवुड नहीं होता था, उस वक़्त लोग बॉलीवुड बोलते नहीं थे, तो उस वक़्त के लोगों को बोला कि आपने जो भी करना है समथिंग का। और उसी वक़्त हिंदुस्तान में भी पैरेलल सिनेमा मूवमेंट चल रही थी और बहुत लोग, मृणाल सेन, मणि कौल, अडूर गोपालकृष्ण, अरविंदन, मृणाल सेन, जब मैं 73 से 76 में पढ़ रहा था, श्याम बेनेगल, वो फिल्में बना रहे थे, अलग तरीके की फिल्में जो मेरे को अच्छी लगने लगी। और फिल्म इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद मैंने एक चीज़ ज़रूर डिसाइड की कि मैंने इसी सिनेमा में काम करना है। मेरे को बहुत ऑफ़र आई, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आई, बट बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों से ऑफ़र आई। मैंने कभी नहीं किया। मैंने सिवा उनको इतना ही बोला कि सर आप और हम बाद में झगड़ा करेंगे, वो मैं चाहता नहीं हूँ। आपकी मेरी तरफ एक रिस्पेक्ट, आप बड़े आदमी हैं, आपकी मेरी तरफ एक रिस्पेक्ट है और मैं उसको बरकरार करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये तोड़ा जाए। तो इसलिए मैंने दूसरे सिनेमा में काम ही नहीं किया। एंड आई मस्ट बी लकी आल्सो। इतना आसान नहीं होता दुनियादारी, पर मेरे साथ रास्ता खुलता गया। व्हेन आई वाज इन द फाइनल ईयर, वी मेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड युक्त, एंड दिस वाज 4 डायरेक्टर्स, 4 कैमरामैन, 4 साउंड रिकॉर्डिस्ट एंड 1 एक्टर, ओमपुरी। We made a organization called Yukt, and Yukt made one film, first film, that was a Ghasiram Kotwal. आपने तेंदुलकर साहब के उस वक़्त पूना में थिएटर अकेडमी ने वो प्ले आता था, आपने बहुत बार हमने जाके देखा था। मोहन आगाशे was one of the actors in that. I mean, Jawahar Patel directed it. And Tendulkar Sahab wrote it, and Bhaskar Chandavarkar, who was our music director, music teacher in the Film Institute, gave the music. And it was one of the finest plays, I think, not that I'm authority on play, but well done play at that time. I'm talking around 73, 74, 75. So Yukt decided that they should make a film on Ghasiram Kotwal. And as I was graduating, we started making this film. And I was, because of junior them all, from all the 16 people, so I was given the job that you have to look after the production. And other people, Manmohan Singh and Vinod Pradhan, they were the batchmates. So they did the film. And I only did the production for that. But they told me that whenever the next film we'll make, you will photograph that film. I said, very good. So Mani Kaul and Krishna Hariharan, who was my batchmate in the Film Institute, they both co-directed that film. So जब सारा पूना और थिएटर अकेडमी और घासीराम कोतवाल के क्लोज लोग, apart from actors, तो एक्टर वही थे. They came to see the film, they were flabbergasted. This has nothing to do with Ghasiram, which they were doing from the last 10 years. कोई ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है. तो मनी, अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. So I came to Yukt made the next film called अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, which was fine. और घासीराम कोतवाल की मैं एक छोटी सी चीज़ भूल गया हूँ कि जितने 16 लोग थे सबको देना बैंक से लोन लिया. 10-10 हज़ार रुपए हर इंसान ने लोन लिया देना बैंक से, और लिखा हुआ जो 1992 तक हमारे ऊपर केस चलता रहा कि इन्होंने वो 10,000 साला 25-30 हज़ार हो गया. ये तो 10,000 देने के पैसे लिए वो 25,000 का कोर्ट में हमको खड़ा कर रहा है.
और फाइनली वो कोई स्कीम्स आई एनपीएस वगैरह की करके, तो उन्होंने निकला इनसे कुछ होने वाला है। हमने कहा, कोर्ट को हमने बताया, हमने इनको फिल्म दे दी है, हमने पैसे खाए थोड़ी हैं। और 1,60,000 रुपया क्या होता है, हमने खाया थोड़ी है, हमने तो फिल्म बना के दी। अब इन्होंने बेची नहीं है, इनकी प्रॉब्लम है। तो वहाँ एक जज थे, उन्होंने लिख दिया कि ये बच्चे ठीक बोल रहे हैं। और वो 92 तक हमको कोर्ट जाना पड़ता था। 92 में ये डिसाइड हो गया कि नहीं, ये ठीक है। चलो, उसके बाद अरविंद देसाई तो फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन की थी, और इसमें भी एक फंडा हुआ करता था। उस वक्त कोई जिसको भी जो भी फिल्म बनाता है उसको कुछ ना कुछ कोलैटरल रखना पड़ता था। ये आपको अगर 5 लाख का लोन देते हैं तो कम से कम आप 1,20,000 रेज करो। अब कौन 1,20,000 रेज करेगा, कहाँ से रेज करेगा? तो फिल्म वाले भी तो आप धंधे वाले लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सैनी को कितना पैसा आपने देना है, उन्होंने फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन से पूछा। उन्होंने कहा 25,000 रुपया। तो बोला 20,000 रुपया उसका मत दो। डायरेक्टर को कितना देना है, साउंड रिकॉर्ड। तो इस तरीके से हमको 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपया दे के बाकी कोलैटरल रखा, जो आज तक मेरे को पैसा नहीं आया। बट आपको फिल्में बनाने को मिली। तो हमने अरविंद देसाई स्टार्ट की। तो अरविंद देसाई में सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपको ब्लैक एंड वाइट बनानी है कि कलर बनानी है। हमने कहा यार, ब्लैक एंड वाइट कर करके तो हम इंस्टीट्यूट से थक गए हुए हैं, अभी तो कलर ही बनाना चाहिए। ठीक है, तो गेव अस अ फिल्म कॉल्ड ऑर्वो, क्योंकि दैट वाज द चीपेस्ट फिल्म अवेलेबल एट दैट टाइम। तो उन्होंने कहा कि आप ऑर्वो कलर में फिल्म बनाएंगे। 40 ASA की फिल्म साहब, कहाँ 100 ASA की, वो 40 ASA की फिल्म का मतलब कि आपको जो चीज़ मेरे मुंह पे जो लाइट पड़ रही है वो कितनी पड़ेगी कि आप 2.8 जो मैक्सिमम अपर्चर है उस पर शूट कर सकें। लेकिन क्या करें, अब चॉइस ब्लैक एंड वाइट और कलर के बीच में था। तो हमने भी कहा चलो करेंगे, कलर में करेंगे। तो वी स्टार्टेड शूटिंग। सईद मिर्ज़ा जी ने अपना पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, स्क्रिप्ट पढ़ा लिखा था। पहली बार हमने देखा, उन्होंने अपनी दीवार के ऊपर, विच आई लाइक इट वेरी मच, एक से लेके लास्ट सीन तक लिखा हुआ था। हर सीन में लिखा हुआ था इस सीन में कौन एक्टर है, ये बंदा करेगा और 2 बंदे उसको असिस्ट करेंगे, और जिसकी नेक्स्ट फिल्म होगी वो छुट्टी लेगा और वो अपना काम करेगा। एंड वी गेव देम द एंटायर ब्लू प्रिंट फॉर एंटायर 12 to 15 films. And he agreed. Fortunately, he agreed. And we left. तो मैंने सोचा कि यार कि एक तो पूरा साल इंस्टीट्यूट में निकल जाएगा। आई एम सॉरी, आई एम कमिंग बैक, बट आई जस्ट रिमेंबर्ड, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। तो मैंने कहा मैं ज़रा गांव जा आता हूँ, माँ बाप से मिल आता हूँ। आई केम देयर, एंड मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने मेरे को, और पहली फिल्म उनके साथ करनी थी, उन्होंने अपना स्क्रिप्ट विट मेरे को सुनाया, हमने सब कुछ देखा किया। और मैं जब वापस गया 15-20 दिन के बाद, तो मैंने कहा भाई चलो चलो, हमारा नेक्स्ट शूटिंग तो स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट है, तो बताओ क्या करना है। तो उसने बोला वो सब तो चेंज हो गया यार। एंड मिस्टर डेविड धवन वाज आवर एडिटर। उसने उसको बोला तुम पागल है, ये जो बना रहा है, ऐसा लिखते हैं ड्रामेटिक फिल्म बनाओ, जो डेविड धवन को जिंदगी में करना था। उसने उसको ऐसा वहां ब्लैकमेल किया कि वो आया, उसने ऑल टुगेदर नई फिल्म लिख के दे दी उन दोनों ने बैठ के। और मैं आया, मैं वो लोकेशन देखने ढूंढ रहा हूँ, कह रहा ये तो है ही नहीं है, तो फिल्म ही नहीं है। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में ऐसा भी हुआ करता था, वो हमारे साथ हुआ है। So first time I saw this entire thing hung on the and which rest of my life, whenever I made a film, I followed that, because I found that was the most easiest way to understand how the graph and how it is progressing, which actually no production told us in the film institute. तो हमने स्टार्ट, उनके स्क्रिप्ट सुना, सब कुछ, या ये हुआ वो हुआ। तो उस फिल्म में हमको एक घर चाहिए था अच्छे, एक ऑलरेडी सईद के पास था, बट एक अरविंद देसाई की बहन का घर चाहिए था। तो उस वक्त फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन, मेरे दिमाग से थोड़ा उनका नाम निकल गया है, वो चेयरमैन थे।
उनको सईद और मैं मिलने के लिए गए। उन्होंने कहा यार अगर आपको प्रॉब्लम है आप मेरा घर देख लो और उसमें शूट कर लो अगर आपको शूट करता है तो। और जिस दिन आपको शूट करना होगा, प्रेफरली इफ़ यू कैन डू इट इन सैटरडे एंड संडे, वी कैन गो टू लोनावाला सो दैट यू कैन वर्क प्रॉपरली। हमने कहा ठीक है। हम गए उनका घर देखने के लिए, और जब उनका घर देखा तो इट वाज फैंटास्टिक हाउस। और नेपेंसी रोड पे उनके इतने बड़ी बड़ी 2 बैल्कनीज थी ऐसे, जिससे पूरा समुंदर दिखता था। तो हमने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। तो मैंने सईद को बोला, मैंने कहा सईद वी शुड शूट दिस थिंग इन द इवनिंग। कहता बहुत अच्छा है। ये बात फिक्स हो गई कि हम शाम को शूट करेंगे। एक दिन हम उनके घर शाम को देखने गए। मैंने कहा फिर बाय द टाइम सईद को बोला कि आप शॉर्ट ब्रेकडाउन तैयार हो गई है? बोला हाँ हाँ। और मैं ये भूल गया था कि हम एक ऐसे दौर से निकले होंगे फिल्म इंस्टीट्यूट के, ऐसे दौर में जो है जिसमें मिलोस जांस्को करके एक फिल्म मेकर हुआ करते थे जो बहुत ही लंबे लंबे शॉट लिया करते थे। हालांकि ही स्टार्टेड इट इन अ वेरी वेरी सिंपल वे, बट बाय द टाइम 70s came, his entire construction of the shot became so complicated that can't help it. Very difficult to understand. अब सईद मिर्ज़ा भी उसी फिल्म स्कूल से निकले हुए थे। उन्होंने भी मिलोस जांस्को को देखा हुआ था, तो उन्होंने भी उस शॉट मिलोस जांस्को की तरह फिक्स कर दिया। मैंने कहा यार ये तो और वो फिल्म है, 40 तो इसका ये है, और कहाँ लाइट लगाऊंगा ये और ना मैं वो कैमरामैन हूँ ना तुम मिलोस जांस्को है। बोला बेटा ये करना तो पड़ेगा। चलो आई कम एंड शो इट टू दैट शॉट। मैं इस फिल्म की स्टोरी ख़त्म कर लेता हूँ। तो इसका एक दूसरा उनके पास सीन था, पार्टी सीन। वो पार्टी सीन उन्होंने अपने फादर इन लॉ के घर पे शूट करना था, और उसमें कैमरा यहाँ से स्टार्ट करके इस शॉट के हिसाब से जैसे घूम फिर के वापस वहीं आता है। और हर बारी वो तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ये तो 1 शॉट सीन है, तो ये तो दिक्कत ही नहीं होगी कोई। मैंने कहा तुमको दिक्कत नहीं, मेरे को तो दिक्कत है भैया, मेरे को लाइट अप करना है, ये सेट थोड़ी है। हर बार वो बोलेगा जिस दिन शूटिंग जल्दी खत्म हो जाए सनी, वो क्योंकि उनके फादर इन लॉ का घर था, कोई टेंशन थी नहीं, बोला भैया ये सीन कर लें, पार्टी सीन कर लें आज। वो मैंने कहा नहीं यार अभी तक मैं प्रिपेयर नहीं हुआ। और प्रिपेयर कहाँ से होना था, क्या कुछ कर लोगे, बट कितने दिन तुम खैर मनाओगे, एक दिन तो आएगा। वो आ गया। बोला कि कल तो हम ये सीन कर रहे हैं भैया। ठीक है, अभी तो कोई चॉइस ही नहीं बची है, करना ही पड़ेगा। तो मैंने प्रोडक्शन को पहले ही बोल रखा था कि यार बहुत सारे टेबल लैंप वगैरह लाना, बिकॉज वहाँ कोई ज़्यादा जगह तो है नहीं है। जब कैमरा ही चारों तरफ घूम रहा है तो कुछ ना कुछ, और उनके ऊपर ऐसे कुछ बल्ब लगे होते थे, उनको इंक्रीज़ किया, बीच में कुछ किसी चीज़ को कर करके मैंने वो लाइट अप किया। लाइट अप हो गया। एक मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस हुआ करती थी, वो उनके पास क्या था कि वो फॉरेन एक्सचेंज कमाते थे, तो वहाँ से उनका लाइट वाइट चीज़ें बहुत बाहर से आ जाया करती थी। उन्होंने एक क्रैब ट्रॉली ला के रखी हुई थी। क्रैब ट्रॉली ऐसी होती थी कि वो आप कहाँ मर्जी उसको घुमा लो, उसके व्हील्स किसी रेल के ट्रैक के ऊपर नहीं चलते थे, वो ऐसे ही चलते थे। बोला क्रैब ट्रॉली का शॉट है, ठीक है। और वहाँ गए तो उन्होंने कहा आज क्रैब ट्रॉली बुक है। तो मैं तो शांति हो गया। मैंने कहा ये एक दिन तो मेरे को और मिल गया ना। सईद बोला आज, क्योंकि उसमें सारे लोग उस वक्त एक्स्ट्रास तो आते नहीं थे, आप सीन देखेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सारे यार दोस्तों के बीवी बच्चे सब वही आए हुए थे उसमें। तो बोला इतने लोगों को मैं वापस थोड़ी बुलाऊंगा। एंड हिज फादर नाउ वाज ए डॉक्टर। बोला अगर क्रैब ट्रॉली नहीं मिलती तो तुम बैठेगा उसके ऊपर, व्हील चेयर के ऊपर, और शॉट लेगा। शॉट मेरे को आज लेना है, तुम कुछ भी कर ले। आई डाइड 100 डेथ्स। क्या करेगा इंसान, फंसा हुआ इंसान। और वो मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन ने बोला कि ऐसा एक जुगाड़ किसी और ने हिंदुस्तान में बनाया हो, आप जाके उससे मिल लो। फॉर्चुनेटली वो मिल गया, और वो भी कोई व्हील चेयर से कोई इतनी कोई खासियत चीज़ नहीं थी, बट ये जरूर था कि कैमरा फिट हो जाता है और आप थोड़ा सा उसके ऊपर मूवमेंट कर सकते हैं। तो लिया साहब, फाइनली शॉट लिया। और अब वो तो ज़माना ऐसा था कि आपने शॉट ले लिया और आपको जब तक रशेस नहीं आएंगे आप तो कुछ देख नहीं पाओगे।
रोज़ देखने का तो कोई काम नहीं होता था। सारी फिल्म तैयार होगी, फिर नेगेटिव डेवलप होगा, नेगेटिव डेवलप हुआ भी होगा तो प्रिंट तो उसका आपको लास्ट में ही मिलेगा। तो क्या, चलो ठीक है, आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती है, करो। तो जब तक आपको रिजल्ट भी आएगा तो ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट होगा, पैसे तो होते नहीं थे तो ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट होके आएगा, आप पूरा एडिटिंग करोगे, फिर फाइनली जब रिलीज प्रिंट निकलना है तो आप कलर देखोगे। तो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी डेथ्स अ कैमरामैन डाइज एट दैट टाइम, नो, बट कोई देयर वाज नो चॉइस लेफ्ट। तो इस तरीके से हमने अरविंद देसाई की। So I think I may, if I remember something, I will speak later. मैं इसकी दोनों आपको क्लिप दिखाता हूँ, थोड़ा सा मेरे लिए ज़रूरी है, थोड़ा सा मेरे को ज़रा बोलने से भी रेस्ट मिलेगी, और आप लोग भी तो बोर हो गए होंगे मेरे से। आप इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? मेरे से पूछो। His last film, I don't know whether I will have that much of time. It's already 12:30. I think I still are to go in my lecture. But anyway, we can finish wherever you like. Please go ahead. तो इसके बाद NFDC, इसके बाद FFC से NFDC बन गया, और NFDC ने एक रूल बना दिया कि अगर आपको या तो ब्लैक एंड वाइट फिल्म करो या 16 mm में शूट करके उसको 35 पे ब्लो करो, जो कि जो टोटल टेक्निक थी वो हिंदुस्तान में 1% भी आई नहीं। इट्स अ हाफ बेक्ड काइंड ऑफ ए process which they brought to India. Mr. Manmohan Shetty, who is a very, very close friend of mine, he owned the laboratory. And he brought that 16 mm thing to India, and he said, I will do it. He did it. Lot of films were made. Saeed Mirza made 2 films after this. Called Albert Pinto Ko Gussa Kyun Aata Hai, Mohan Joshi Hazir. And both the films was done in the 16 mm, but photographed by me, but I was not happy at all. And I told him that now I'm tired and I'm not going to do. And we protested to the Mrs. Gandhi at that time. That this government of India should not do this. Because we are not asking too much of money. एक तो आप वैसे ही पैसा नहीं देते हो, और फिर उसके ऊपर आप कह रहे हो कि 16 mm को 35 mm, और जो सिस्टम और टेक्नोलॉजी जो है वो अपने पास है नहीं अच्छी। हम तो एक प्रिंटिंग मशीन लेके आ गए हैं और एक रोलर हमने हिंदुस्तान में पैदा कर लिया जो उस 16 mm फिल्म को प्रोसेस करेगा। आप उस टाइम की फिल्में देखते हैं, 16 mm के इतनी ये फिल्म का साइज़ है सर, उसके बीच में साउंड ट्रैक है, साउंड के बाद छोटा सा बचता है, उसको जब उस टाइम पे तो आपको ज्वाइंट करना पड़ता ना, शॉर्ट के नेगेटिव कट करना पड़ता, कट करके ज्वाइंट करना पड़ता था, वो ज़माना था वैसा। तो जब आप स्क्रैच करते थे उसका कुछ ना कुछ सामान उसके ऊपर गिरता था। एंड व्हेन यू सी द ऑन द स्क्रीन फिल्म्स, और कोई बबल निकल रहा है, कोई कुछ निकल रहा है, मनमोहन को हम बोलते मनमोहन ये क्या, कोई नहीं कोई, आई विल रीप्रिंट इट। ही डिड दैट, ही हेल्प्ड अस इन दैट वे, आई अंडरस्टैंड। बट when the technology was not properly in India, India should have not done, but the directors wanted to make films, so they made it. Lot of films in that era was made, I think from 1980 to 87, 88. Lot of film, but finally it was scrapped. But for a cameraman it was the worst time ever. Because जब आप अपना रशिश देखते हुए आप रो रहे हैं थिएटर में, तो उससे ज़्यादा क्या करोगे आप? एक तो हिंदुस्तान में आपको मालूम है थिएटर ऐसे थे। मेरा एक फिल्म का कोई एक प्रिंट निकलता है तो एक मेरा दोस्त देख के आता, कहता सैनी क्या यार तुम डार्क प्रिंट बना रहे हो। मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो ठीक ही बनाया था। थोड़ी देर के बाद दूसरा मिलता, वो किसी दूसरे थिएटर में देखा, सैनी इतना वाइट प्रिंट लाइट प्रिंट क्यों बनाते हो यार, आप क्या करोगे? ना तो मैंने लाइट प्रिंट बनाया, ना ही मैंने डार्क प्रिंट बनाया। जो डार्क प्रिंट आया उसमें प्रोजेक्शनिस्ट ने आर्क चला रही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? किसी ने अपने थिएटर के स्क्रीन को साफ नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा? बट दैट वॉज अ बिग स्ट्रगल फॉर अस।
just to go, and I never went to see my film apart from the National Award theatres or festivals theatres. I never saw the film anywhere because I know I'll die 100 deaths over there. Anyway, बहुत देखोगे, मैं सईद मिर्ज़ा का चैप्टर ख़त्म नहीं करूँगा लेकिन काफ़ी चीज़ें उसके बारे में बोलूँगा. उसके बाद मैंने उसके साथ फिल्म की सलीम लंगड़े पर. That was the first film where I got the national award. I could have got for Arvind Desai. There was a tie in the jury and the chairman was asked to vote. And chairman voted for Govind Nihalani. At that time, Junoon was given the national award, not Arvind Desai. Then in between there is one film which I will speak later of, one called Sata Se Uthta Aadmi. And Mr. V. Shantaraman was the chairman of the jury. And this is the first time in the history of the National Film Festival that screenings were held in Bombay, not in Delhi. He said, I will not go to Delhi. He was a person of that kind. He said, I will not go to Delhi. If you want me the chairman, I have got my own theatre here in Rajkamal. You screen over there or screen anywhere else where you want to screen. I will not go to Bombay, Delhi. So at that time the screenings were held in Bombay. And I was given the national award for that. And when the chairman job came to speak on the film, he says, मेरे को फिल्म ही नहीं समझ आई और आप किस जो फिल्म मेरे को समझ नहीं आई, मैंने 50 फिल्में बनाई हुई हैं, उसको आप नेशनल अवार्ड दोगे? बहुत झगड़ा हुआ जूरी के अंदर. 2 members of the jury at that time resigned. But the Directorate of Film Festivals finally pacified them. कि नहीं भाई वो चेयरमैन है, क्या फ़र्क पड़ता है चीज़ों से, नहीं उनको नहीं पसंद आई तो नहीं पसंद आई, अब आपको मानना पड़ेगा चेयरमैन की बात. So they agreed. So I lost there. So this was the film which I finally got it. I'm sure the jury member must be a friend of mine. और ये फिल्म वापस मैंने सईद को इतना ही बता रखा था कि मैं 16mm फिल्म नहीं करूँगा, वो आप किसी और से करवा लेना, मैं नहीं करूँगा. कहता नहीं, इस बार अपन कोशिश करेंगे 35 करने में. मैंने कहा ठीक है. तो वी डिड दिस फिल्म इन 35. दिस इज अ फिल्म मस्ट, if any one of you have seen, I don't know. The entire film is in the night, and that too streets of Bombay. And those streets where all these gundas have establishment. And it is only Said Mirza who has the guts to put the camera there. And he shot the entire film on the streets of Bombay. That too where all these Dawood Abrahams and Karim Lalas operate. Literally operate. But उन्होंने कभी इंटरफियर नहीं किया. फॉर्चुनेटली वो सईद मिर्ज़ा को अपना कुछ एक उच्चा लम्बा आदमी है, वो तो उससे डरते होंगे जो भी है. बट एक बार करीम लाला ने उसको बुलाया बहुत कि भाई ये तुम, मेरे को सुना है तुम मेरे लाइफ के ऊपर फिल्म बना रहे हो. बोला नहीं सर, आपकी लाइफ के नहीं है. तो कहता अच्छा कोई नहीं, बना लो तुमने जो बनाना है, पर एक काम करो, द फिल्म द नेम वाज करीम लंगड़े पे मत रो. कहता इसका नाम चेंज करके सलीम लंगड़े पे मत रो. तो फॉर्चुनेटली तब तक हमने डबिंग नहीं की थी, और उस ज़माने में फिल्मों में डबिंग होती थी, तो सारी फिल्म में तो वो तो करीम बोलता है, तो उसको सलीम बोला, किसी ने पकड़ना नहीं था. लेकिन सईद मिर्ज़ा भी जिद्दी आदमी है, उसने भी एक शॉट में उसको बोला तुम करीम बोलेगा. वो आप और हम, मैं जो फिल्म वाले हैं उनको मालूम है, बाकी किसी को नहीं मालूम. बट उसने कहा, फिल्म मेकर भी वो अपना बट रखना चाहता है, बेशक गुंडा कितना बड़ा भी हो. So this film was mostly done in the night on those streets. It was difficult to light. एक तो हर वक्त कोई ना कोई डर रहता था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गोली चलती रहती थी. बट एनीवे उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा. ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमको जितनी हेल्प चाहिए थी की थी. तो मैं सलीम लंगड़े के 2 आपको सीन्स दिखाऊंगा, विच आई थिंक आई लाइक देम द बेस्ट. Very difficult for me. It was very difficult to light up. यूनानी चूर्ण, पेट का, मधुहनी, सब कुछ करे जरूर. दाखा भाई का चूर्ण पेट के अंदर मशहूर. चले भाई. अस्सलाम वालेकुम. इस्लाम चूर्ण मियां क्या हाल है? ठीक है. ठीक टाइम पे आया तुम चूर्ण मियां. क्यों क्या बात? अच्छा मियां के पेट में तकलीफ है. है कुछ? अपने पास? गधों के लिए कुछ भी नहीं.
पीड़ा कभी तो स्टोरी खत्म कर यार। क्या बात है सर? क्या वो ठीक नहीं है? लग गया अपने मोहल्ले में फिल्म देखा भिवंडी पे दंगे का फिल्म। हाँ मैंने भी सुना उसके बारे में। क्या सीन दिखा बाप, देख के तो डर लगता है। मासूम बच्चा लोग का कत्ल किया। उस फिल्म में सब झूठ बताया है, बकवास, पब्लिक को भड़का रहे हैं साले। अरे वो जो भी बोला बरोबर बोला, वो तो दंगे को खत्म करने के बाद बोला। मालूम नहीं कौन साला ये झगड़ा चालू किया। ये अंग्रेजों ने गड़बड़ कर दी मियां, वरना हम लोग भाई भाई की तरह रहते थे। हाँ अरे लाला, अंग्रेज लोग तो कभी से तड़ी पार हो गए, अब क्या करना है? अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने देश से प्यार नहीं करते, जैसे अच्छे भी। क्या अच्छे मियां? अरे हमें तो पान लगाने से फुर्सत नहीं मिलता है, क्या सोच रहे हो देश के बारे में? तुम अपने देश से प्यार करते हो? बिल्कुल। और इसे कैसे साबित करते हो? चोरी का माल खरीद के, जुए के अड्डों और रंडियों के चक्रों में हिस्सेदार बन के। क्या रंबी भाई, तुम भी क्या सुना मिला तुमने? रफीक भाई कुछ गलत बोला क्या? हाँ? लाला, इस मुल्क में पहले से ही देशभक्तों की लंबी लाइन लगी है। काहे को ट्रैफिक जाम करता है? जाम ना दंगा कर। तेरे मुंह से मुल्क और मोहब्बत का बात अच्छा नहीं लगता क्या? Was a film, a story between a blind and a sighted person, a widower, and in the background of a blind school in Delhi. फिर मैं वही बात कहूँगा कि हम कई चीज़ें ऐसे नोशन लेके चलते हैं कि दिस फिल्म वाज एक्चुअली शी हैज़ रिटन ऑन the principal of the blind school, who was a blind and had a colorful life. So we were shooting in the blind school. We used to talk to the children, and वो आके सुबह कहते रात हमने फिल्म देखी अंकल। कौन सी फिल्म देखी यार? आप दिल से तो यही बोलते ये अंधा है, क्या फिल्म इसने देखी होगी? But he could explain to you the entire film. आपकी आंख खुल जाती है क्योंकि आप कौन से क्लोज माइंड से किसी को देख रहे हो। And they will show it to you. कोई आएगा, पहचानते हो इनको? He'll touch her साड़ी से, ये वो आंटी हैं। It was ऐसा मैंने नहीं देखा था। एक दिन हम किसी के घर से डिनर करते आ रहे थे। मिस्टर मित्तल, who was a blind principal of that school, he was also coming down. शाहजहां रोड पे ये अंडर सेक्रेटरीज के घर हुआ करते थे, उसके सेकंड फ्लोर पे वो रहते थे। वो जैसे ही हम घर से बाहर निकले बिजली चले गई। एंड दिस गाय इन ए सेकंड ही सेड कि नाउ यू फॉलो मी। दैट्स अ लाइफ। एंड डूइंग दिस सिनेमा you learn a lot. You become a better human being. You don't come with a set minds. You have gone with a set mind. You came out with a very different mind. And this entire cinema taught me this thing. That principal, उसने नसीर के साथ शर्त लगाई कि ये टेलीफोन पड़ा है, कैन यू डायल फास्टर, उस वक्त वो डायल करने वाले फ़ोन होते थे, कैन यू डायल फास्टर दैन माई। नसीर बोला कभी भी यार क्या बात कर रहे हो तुम। कहता करो। हमारे पास स्टॉप वॉच हुआ करती थी उस दिनों में। हम स्टॉप वॉच लेके लोग काम करते कि फिल्म ज़्यादा वेस्ट ना हो, स्टॉप वॉच से टाइम देख लिया करो कितने सेकंड फिल्म को। ऐसा एक शीट जो कंटिन्यूटी शीट लिखते थे उसमें एक कॉलम था, तो उसने एक असिस्टेंट ने स्टॉप वॉच रखी हुई थी, तो उसने कहा नसीर को बोला करो भाई तुम। नंबर डिसाइड हुआ,
नसीर ने इतने सेकंड में किया. He took the phone, he put all the fingers inside. हम तो ऐसा ऐसा करते हैं ना, he put all the fingers and he knew where to go and lift that finger and put the another finger. He took 2.5 seconds less than Nasiruddin Shah. साइड स्टोरीज हैं आपकी लाइफ में चलते चलते. सो एनीवे, काफ़ी कुछ हमने उस फिल्म में किया. तो उसमें एक गाना था, उसमें स्क्रिप्ट पढ़ रखा था मैंने. तो स्क्रिप्ट के ऊपर सही प्राची ने कहा कि यार 2 दिन के बाद वी हैव टू शूट दिस सॉन्ग. ठीक है. तो स्क्रिप्ट में लिखा था अर्ली मॉर्निंग कविता सिंग्स. तो अभी तो टाइम आ गया. तो मैंने उनको पूछा, मैडम, मैं उनको हमेशा मैडम बुलाता था, मैडम ये अर्ली मॉर्निंग कितने बजे की अर्ली मॉर्निंग है? ठीक, जो मर्जी रख लो, तुम्हारे को क्या चाहिए? मैंने कहा मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग 5:45 बजे से लेके 9 बजे तक है. बट 5:45 से 9 बजे तक जो भी टाइम डिसाइड करेंगे उसमें टोनल क्वालिटी अलग आएगी. तो ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या करना. तुम डिसाइड करो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है. तुम मुझे बताओ कि तुमको कौन सा अच्छा लगता है. मैंने कहा मेरे को तो 5:45 बजे अच्छा लगता है. बोला अच्छा, बहुत अच्छा, हम 5:45 बजे करेंगे. मैं क्या मैडम ऐसा है कि ये 5:45 बजे आप पहले शबाना आजमी को जाके पूछिए, वो 4 साढ़े 4 बजे तैयार होके सेट पे आएगी. सर्दियों के दिन, फरवरी का महीना था दिल्ली में, वो तैयार होके 4:30 बजे 4:45 बजे सेट पे आएगी. एंड वो सुरेश जिंदल के घर में सुंदर नगर में रहती हैं और हमारी शूटिंग बहुत दूर है. मेरे को मालूम था नसीरुद्दीन शाह की, मेरे को तो मेरे से साथ पढ़ा हुआ था, ये तो मेरे से सीनियर थी. तो नसीर तो मेरा दोस्त था, तो मैं उसको तो मना लूँगा और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन आप पहले शबाना से पूछिए. वो कहती मैंने कह दिया ना, तो शबाना कौन होती है तेरे को बोलने वाली. कहा ठीक है. स्टार्ट किया हमने शूटिंग. तो नसीर अलग चलते हैं सड़कों पे, वो तो अलग सीन थे अर्ली मॉर्निंग के. और शबाना आदमी अपने घर में गाती है. एंड टाइम कम्स व्हेन द सॉन्ग एंड्स, दे बोथ मीट. एंड उसमें हर ओवर द शोल्डर शॉट है. यहाँ से जो नसीरुद्दीन शाह के बैकग्राउंड में जो गार्डन वगैरह जो भी दिखता है, और जब उधर से शॉट लेते हैं तो उसका इंटीरियर दिखता है. तो उसको मैच करना कोई आसान काम था नहीं. मैंने एक ऐसा चैलेंज ले लिया था कि 5:45 बजे ही करना है इसको. ठीक है. अब आपको अपनी चीज़ अचीव करने के लिए बहुत लोगों का साथ चाहिए होता है. एक भी इमेज जो आपने अभी तक भी देखा है, इसमें सब मेरा अकेले का नहीं है, वो सारे लोग हैं. एक लाइटमैन का उतना ही कंट्रीब्यूशन है इसमें. अगर वो एक कटर लेके मैंने उसको खड़ा किया हुआ कि इस एंगल से लाइट को कट करके रखना, जब मैं कैमरा के थ्रू लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम उसने बराबर कट के, लेकिन मेरे को विश्वास है. और वो आदमी मेरे जो उसने मैंने बोला है उसको लेके खड़ा है. तो इन योर लाइफ वेदर इट्स अचीवमेंट और नॉट, दैट सेकेंडरी. बट वट एवर वी आर सेइंग दैट दिस इज अ गुड फिल्म, आई डिड इट. It had a contribution of each and everybody. आपको तो जांसको और बाकी लोगों ने, आप जस्ट फिल्म इंस्टीट्यूट में सिनेमा देख रहे थे, आपको तो धक्का मारा उन्होंने कि जाके कुछ करो. वो तो गरीब आदमी है ना लाइटमैन. मेरे को तो उस फिल्म करके दूसरी फिल्म मिल गई, उस बेचारे को काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मेरे को भी मालूम नहीं है. लेकिन आपकी जर्नी में वो इक्वल पार्टनर है. तो हमने मैं तो उठूंगा ही, क्योंकि मेरे को शॉट लेना है, तो मैं तो उठूंगा ही. आज भी जब मैंने आपको लेक्चर देना था, मैं 5 बजे उठ के वापस रिपीट किया, दिमाग में घुमाया कहीं उल्टा ना बोल जाऊं. तो वैसे ही वो था. हमारे लिए तो हर रोज एग्जाम है. तो किया 3-4 दिन शूट किया. अब मेरे को ये मालूम नहीं हो कि ऑडियंस को अच्छा लगा हो ना लगा हो, लेकिन एक नया इमेज जरूर क्रिएट किया. अब उस इमेज ने क्या किया ये मुझे नहीं मालूम. मेरे को सेटिस्फैक्शन मिली, मेरे डायरेक्टर को सेटिस्फैक्शन मिली, मेरे जो 4 दोस्त लोग जिनको सिनेमा का ज़्यादा सेंस था उनको मिली. मेरे लिए इतना बहुत था.
Sorry, I have to just go back to, because it's not there in the hard disk, I have to go back to